So, very good evening, all the participants. Today is the first session for the new batch. So, we welcome Abhishek Kumar ji and Kamaldeep Kalra ji and others in this group. So, over a period of time, what I have felt is that we devote sufficient time to IBC, to preparation of IBC, which is basically of 77 marks. But we give very less attention to allied laws, general laws, financial awareness, and general awareness. So in this batch, what we are going to do? We are going to start it in the reverse way. First of all, because 23 is no less, 23 marks out of 100 is a sufficient marking, and it is very necessary to have a proper study of this syllabus which covers this 23 marks. So first of all, let us have a look at the syllabus. So what is the syllabus and why this 23 marks is important? Just a minute. Let me share my screen with you. Okay. So I hope my screen is visible. Is it visible? Yes, sir. Okay. So first thing is, what is the cutoff date for this syllabus? Anybody? What is the Sir, cutoff date? Cutoff date is visible on the screen itself. What is 4th the cut? February to सर 4th February 2025 सर. So 4th February 2025 is the cutoff date. And any amendment made after 4th of February 2025 will not come in the syllabus. But now IBC bill has been passed by Lok Sabha. It may soon be passed by Rajya Sabha and President Assent may also be there. So maybe that they revise the syllabus. It is very likely that they revise the syllabus either from July or from October. Right? So we have to be accordingly prepared for it. Now, this business laws, which covers Companies Act, and there are various chapters for this, which are covered here. Partnership Act, LLP Act, Indian Contract Act, and Sale of Goods Act. 4 marks are there for this, right? Another thing is that a case study can also come on these allied laws. And normally it comes on either of these, Companies Act, Partnership, LLP, Contract Act, or Sale of Goods Act. So this case study of business and general laws, it will have 4 questions of 2 marks each. So 8. 4 plus 8 is 12. Then besides that, general laws are also there. Lot of laws are there. And that coverage is of 7 marks. So 4 plus 8, 12, plus 7, 19. And then there is financial awareness and general awareness. Financial awareness 2 marks and general awareness 2 marks. So 23 marks are reserved for knowledge other than of IBC. 72 marks are reserved for IBC and 23 marks are for general laws. Then 5 marks are also for case laws, and case laws also, they are from the IBC provisions only and not from general laws. So 77 marks for IBC related, code, rules, regulations, and 23 marks for general laws. So naturally, it is very important to understand the concept. But before we start, let us devote 10 to 15 minutes on IBC before we start the journey of this general laws. So first things first. Can you tell me what are the various processes? अभी क्या है कि there are 2 new students
Kamaldeep Kalra ji and Abhishek ji. So I would request them to take the lead because other students are old. ठीक है, तो अभिषेक कुमार जी, अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन पुट योर वीडियो ऑन, और कमलदीप कालरा जी भी, अगर आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए। इफ इट इज अनकंफर्टेबल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम अपना ऑडियो ऑन रखिए, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट मी शेयर विद यू एन एक्सेल शीट। या एक्सेल शीट की भी क्या जरूरत है, एक्सेल शीट की भी जरूरत नहीं। लेट मी शो यू द मटेरियल, because we will be starting with general laws, but in the meantime you will be studying on your own the IBC related laws. I had already shared with you one playlist. तो कमलदीप जी, आपने कुछ पढ़ा उसमें से? वो जो मैंने आपको शेयर किया था प्लेलिस्ट, कितने वीडियोस देखे आपने उसमें से? कमलदीप कालरा जी, हाँ जी सर, दो दो वीडियो देखी सर, दो। दो वीडियोस देखे, ठीक है। तो अब आप बताइए आपको क्या समझ में आया, क्या है आईबीसी? हाँ जी आप अपने सर, हिसाब से बताइए, व्हाट इज हाँ द जी आईबीसी? हाँ जी। जी जी सर, आईबीसी में सर ये 2016 में नया एक्ट आया है। हम्म। इसमें इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बारे में है। हम्म। इंसॉल्वेंसी कॉर्पोरेट डेटर कंपनीज के लिए होता है, और हम्म। बैंक्रप्सी इंडिविजुअल्स के लिए होता है। वेरी और गुड। हाँ जी, हाँ। इंसॉल्वेंसी कंपनीज में और एलएलपी दोनों को लिया जाता है इसमें। हम्म। और इसमें कॉर्पोरेट सी आई आर पी होती है, हम्म। वो तो चलती है आपके पीछे से इसमें। शोर कैसे आ रहा है कमलदीप कालरा जी, आपके यहाँ से शोर पर आ रहा है? ये एक्चुअली पड़ोस से आ रहा है, मतलब बगल से आ रहा है। एक ओके गली ओके। है, उससे थोड़ा सा शोर और निकलता है। हाँ जी, क्या है, रोड बारिश है? भी आ रही है, बारिश भी आ रही है सर ओके आजकल। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सो तो पहले ये सर इसमें, बताइए मेरे को कि यस सर, यस सर। जो कॉरपोरेट्स हैं उनके लिए हाँ जी, कौन हाँ कौन जी। से प्रोसेसेस हैं? आई थिंक माई पीपीटी इज विजिबल, इज इट विजिबल? यस सर। हाँ। यस सर, यस सर। तो फॉर कॉर्पोरेट्स हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर? फर्स्ट प्रोसेस कौन सा होता है कॉर्पोरेट में? तो जी जी, एक तो सर ये बैंक बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो एप्लीकेशन डालते हैं जब हम्म। उनको पैसा चाहिए होता है। फिर उसके हम्म। बाद ये अगर जो ऑपरेशन क्रेडिटर होते हैं, जो हम्म। अदर देन फाइनेंशियल क्रेडिटर, वो उनको वेरी गुड। पैसा चाहिए होता है तो वो भी डालते हैं एप्लीकेशन। वेरी गुड। और कॉर्पोरेट, हाँ जी, कॉर्पोरेट कंपनी खुद से भी डालती है हाँ, एप्लीकेशन। कॉर्पोरेट डेटर्स भी खुद से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक जी जी। है। ये थोड़ा सा मैं बता दूं, यस बेसिकली सर, क्या है, आईबीसी इज ए प्रोसीजरल लॉ। तो इट आउटलाइंस द प्रोसीजर्स फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी। देखो रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन इज ए पॉजिटिव वर्ड दैट वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इकोनॉमिक क्राइसिस, द फाइनेंशियल क्राइसिस यस। विच द कॉर्पोरेट और द नॉन कॉर्पोरेट इज फेसिंग। ठीक है। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस रिकवरी नहीं है, हमारा पर्पस ये है कि उस कंपनी को रिवाइव कर दो। अगर हम कंपनी को रिवाइव कर देंगे तो क्या होगा कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा, सभी को रेवेन्यू मिलेगा। अभिषेक जी, अभिषेक जी, आर यू देयर? नमस्कार सर। नमस्कार। सो हैव यू सीन एनी ऑफ द वीडियोस? जी सर, यस सर, यस सर। ओके ओके। सो प्लीज डिस्क्राइब what you have learned till now. First of all, tell me what are the various types of processes which may be undertaken to resolve this crisis by corporates. Corporates कौन कौन से प्रोसेसेस में जा सकता है कॉर्पोरेट्स? जी सर, मेनली दो प्रोसेस होते हैं जहां तक मुझे समझ में आता है। या तो रेजोल्यूशन में जा सकते हैं या तो वाइंडिंग अप में जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम रेजोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। अभी जी हम सर, सिर्फ बिल्कुल। रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं।
मैं एक एक्सेल शीट भी खोलता हूं, ठीक है। तो एक मिनट, लेट मी शेयर माई एक्सेल शीट ऑल्सो विद यू। ये एक्सेल शीट है, ठीक है जी। अब एक्सेल शीट क्या है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले अपने को देखना है कि कॉरपोरेट्स। आप अपना भी पेन और पेपर ले लेंगे और पेन और पेपर पर ये मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब कॉरपोरेट्स के लिए रेजोल्यूशन के लिए क्या क्या प्रोसेसेस है पहले वो पढ़ते हैं, ठीक है जी। रेजोल्यूशन में पहला प्रोसेस आ गया हमारा CIRP। CIRP को बोलते हैं हम कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। अब कॉरपोरेट यस। CIRP में कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकता है? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है जी, ऑपरेशनल सब। क्रेडिटर और कॉरपोरेट एप्लीकेंट थ्रू कॉरपोरेट डेटा, ठीक है, यही है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। हाँ, थोड़ा बेसिक रखेंगे कि पहले पढ़ने से पहले हम समझ लें कि है क्या चीज, है ना। चलिए, अब FC में जो एप्लीकेशन लगाते हैं, FC में क्या इंडिविजुअल एप्लीकेशन लगा सकता है या ज्वाइंटली भी लगा सकते हैं? जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, पहले तो ये बताइए फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है? कौन होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर? मोस्टली बैंक्स मोस्टली बैंक्स, एंड ओके। या अच्छा, क्या डायरेक्टर भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हो सकता है? नहीं है या नहीं? डायरेक्टर, कैन ए डायरेक्टर बी ए फाइनेंशियल क्रेडिटर? आई थिंक अगर उसने लोन्स वगैरह दिए हैं कंपनी को तो मे बी आई एम यस, नॉट यस श्योर। सर, यस सर। यस, यस, इवन ए director who has given loan, provided it's a genuine loan and it's not merely book entry, so there is no bar as such, right? अच्छा, क्या डायरेक्टर भी एप्लीकेशन लगा सकता है? जी एज सर। ए फाइनेंशियल क्रेडिट, डायरेक्टर ने लोन दिया, आप कंपनी उसका लोन वापस नहीं कर रही, तो क्या वो जी, एप्लीकेशन लगा सकता है या नहीं? भाई तुम डायरेक्टर हो, तुम नहीं लगा सकते? लगा सकता है सर। लगा सकता है, वेरी गुड। अच्छा, ये होम बायर्स हैं, ये क्या होते हैं? ये भी सर फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है। होम बायर भी फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये जो बैंक्स, अब हमने कुछ टाइप्स के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, कौन कौन से? एक तो हो गए हमारे बैंक्स, ठीक है। एक हो गए हमारे जो अदर देन बैंक्स, है ना, मतलब बेसिकली कोई भी हो सकता है, कॉर्पोरेट्स लगा लो। कॉर्पोरेट्स, क्या नॉन कॉर्पोरेट्स भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं या वो नहीं लगा सकते? मतलब एक इंडिविजुअल ने लोन दिया कंपनी को, तो क्या इंडिविजुअल भी एप्लीकेशन लगा सकता है? देखो, ये क्लैरिटी शुरू शुरू में बहुत जरूरी है। क्या होता है, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन इतनी बेसिक बातें भी कई बार नहीं क्लियर होती, है ना। तो वो स्ट्रक्चर, जब नींव मजबूत नहीं होगी तो वो बिल्डिंग मजबूत नहीं बन सकती। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वेदर नॉन कॉर्पोरेट्स कैन ऑल्सो बी ए फाइनेंशियल क्रेडिटर? यस सर, यस सर, यस, लगा सकते हैं सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जिसने भी फाइनेंस जो डेट दिया है और अगर डिफॉल्ट है तो वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है। और ट्रिगर पॉइंट इसका क्या है? ट्रिगर पॉइंट है डिफॉल्ट। तो होम बायर्स भी हो गए इसमें। आज बिल्कुल कोई PPT नहीं यूज करेंगे, कुछ नहीं यूज करेंगे, बेसिक बेसिक बातें डिस्कस करेंगे ताकि समझ में आना शुरू हो जाए। अच्छा, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के कुछ एग्जांपल दीजिए, कौन कौन से हो सकते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर? सर ऑपरेशनल जो क्रेडिटर कौन कौन हो सकते हैं? गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड। और उसके अलावा, उसके अलावा जो ये अपना जैसे इनकम टैक्स के ड्यूज हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, कस्टम्स है, एक्साइज है, ये भी सारे के सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में आते हैं। एम्प्लॉयज भी, वर्कर्स भी, ये सारे के सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में आते हैं, ठीक है जी। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में क्या हो गया? सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। उसके अलावा हो गए आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है जी, और एम्प्लॉयज। तो ये सारे आपके ओसीज में आ गए। अच्छा, FC और OC के अलावा भी कोई और टाइप के क्रेडिटर भी हो सकते हैं क्या, या कहीं ना कहीं होना ही पड़ेगा FC या OC? क्यों अभिषेक जी, क्या कहते हो आप?
मतलब एक तो थॉट ये हो सकती है जी, सिर्फ या तो ओसी होगा या एफसी होगा। एक हो सकती है भाई कोई अदर क्रेडिटर भी हो सकता है, क्या कोई अदर टाइप का क्रेडिटर भी हो सकता है क्या? नहीं सर, और तो कोई नहीं। हाँ जी। और तो कोई बचा नहीं सर। नहीं, हो सकता है। देखिए ऐसा है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है? फाइनेंशियल क्रेडिटर वो है जिसने लोन दिया है। ठीक है जी। और ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन है? ऑपरेशनल क्रेडिटर जिसने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की। ऐसा भी कोई हो सकता है जिसने ना लोन दिया हो ना गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की हो। मान लीजिए एक आदमी ने कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है। अब उसने कोई लोन तो दिया नहीं कंपनी को, ना ही कोई उसने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की, तो लेकिन उसने कंपनी से पैसे तो लेने हैं ना, तो वो फिर किस में आएगा? ऑपरेशन, वो अदर क्रेडिटर में आ जाएगा। तो और एक रेजिडरी क्लॉज बनानी पड़ती है लॉ में भी, कि अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर में ना फॉल करे ना ऑपरेशनल क्रेडिटर में, तो कहीं तो फॉल करेगा ना, तो अदर क्रेडिटर भी एक है। लेकिन क्या अदर क्रेडिटर एप्लीकेशन लगा सकता है? क्वेश्चन यहां पर ये है, ये जो अदर क्रेडिटर है ये क्या एप्लीकेशन लगा सकता है फॉर इंसॉल्वेंसी? मान लीजिए एक आदमी ने शेयर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, उसने 2 करोड़ रुपए दिए कंपनी को, अब कंपनी उसके पैसे वापस नहीं कर रही, तो वो क्या करेगा? कोई भी बोल सकता है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी। कर सकता है सर। नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, देखिए दोनों बातों में फर्क है। पहली बात कि आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, आप एप्लीकेशन इनिशिएट कर रहे हो, और दूसरी बात आप क्लेम कर रहे हो, दोनों चीजों में फर्क है। वो क्लेम तो अपना फाइल करेगा, लेकिन इनिशिएशन कोई दूसरा करेगा। इनिशिएशन कौन करेगा? ये तीन ही लोग इनिशिएट कर सकते हैं, या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, या ऑपरेशनल क्रेडिटर, या कॉर्पोरेट एप्लीकेंट थ्रू कॉर्पोरेट डेटर। जो अदर क्रेडिटर है वो एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर सकता, लेकिन एक बार इनिशिएट हो गई तो फिर उसको, वो भी अपना क्लेम फाइल कर सकता। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, एक तो हो गया सीआईआरपी। अब ये सीआईआरपी प्रोसेस पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? सीआईआरपी प्रोसेस मान लो हम पढ़ना चाहते हैं, पहले तो ये बताइए ट्रिगर पॉइंट क्या है? ये सीआईआरपी प्रोसेस ट्रिगर कब होगा? डिफॉल्ट के केस में सर। डिफॉल्ट होगा। अगर डिफॉल्ट नहीं हो तो ट्रिगर हो सकता है, नहीं हो सकता? मान लो डिफॉल्ट हुआ ही नहीं और हम एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो क्या लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। नहीं। ठीक है जी। तो ट्रिगर पॉइंट क्या है? डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट का मिनिमम अमाउंट कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ये सीआईआरपी प्रोसेस। सीआईआरपी प्रोसेस जब शुरू होता है तो कैसे शुरू होता है सीआईआरपी प्रोसेस, कुछ बताइए कैसे शुरू होगा? सबसे पहले क्या करोगे आप? भाई एक बैंक है, अब बैंक वाला आपको अप्रोच करता है, आपका क्लाइंट है, कि भैया ये कंपनी मेरे पैसे नहीं दे रही। ठीक है, आपको इंसॉल्वेंसी की नॉलेज है, तो बैंक वाला सबसे पहले क्या काम करेगा? नोटिस सेंड करेगा। है जी। नोटिस नोटिस सेंड नो, करेगा। नोटिस तो जरूरत ही नहीं सेंड करने का, फाइनेंशियल क्रेडिटर में नोटिस सेंड करने का जरूरत ही नहीं है। सर कंसेंट लेगा सबसे पहले, वेरी पहले। गुड, वेरी गुड। तो प्रोसेस स्टार्ट होगा कंसेंट प्रोसेस से, तो फॉर्म 2 आपसे साइन कराएगा। फॉर्म टू में क्या लिखेगा? फॉर्म 2 में ये लिखेगा, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कि भाई आई एम कैपेबल, है ना, आई एम क्वालिफाइड टू एक्सेप्ट दिस असाइनमेंट, है ना, आई एम नॉट हैविंग एनी डिसिप्लिनरी केसेस अगेंस्ट मी। और अगर ये कंपनी की सीआईआरपी एडमिट होती है तो आई एम रेडी टू एक्ट एज इंसॉल्वेंट इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये सबसे पहला पॉइंट होता है। अच्छा, मान लीजिए आपसे फॉर्म 2 साइन करा लिया, आपसे एप्लीकेशन भी भरवा ली, एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई, हो सकता है ना एप्लीकेशन एडमिट ना हुई हो, तो उस केस में इसके पैसे कौन देगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के? एप्लीकेंट। एप्लीकेंट, वेरी गुड। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? फॉर्म 2, और बैंकर आपको पूरे पेपर दिखाएगा, लो जी ये। बैंकर क्या क्या पेपर आपको दिखाएगा, या आप क्या क्या पेपर उससे मांगोगे? बैंकर आया आपके पास, ठीक है, यू आर एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, फॉर्म 2 साइन हो गया,
ठीक है। एक तो बैंकर आपसे क्या क्या पेपर मांगेगा और आप क्या क्या तैयारी करोगे। So default how it occurred, उसका हाँ एविडेंस। हाँ ठीक है। तो डिफॉल्ट के एविडेंस के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या माना जाता है। IU, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से क्या आपको कोई फॉर्म लेना है, पर्टिकुलर फॉर्म। फॉर्म डी। फॉर्म डी, वेरी गुड। तो आपको सबसे पहले क्या है, एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होती है। कमलदीप कालरा जी, एनी आइडिया कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होती है ये। सर आज हम ये बातचीत ही करने वाले हैं बेसिकली। हाँ जी। सर ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास सारा रिकॉर्ड रहता है। वेरी गुड, वेरी अ, गुड। सो इट इज ए रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक एमसीए या सरसई। तो जो भी आप जैसे बैंकर्स भी डेट देते हैं लोगों को, सो व्हाट दे डू, दे inform the information utility that okay, against this PAN number we have given this debt, and the information utility correspondingly checks it back from the person who has taken the loan, and accordingly they give marking। ठीक है। तो ये मार्किंग कैसे करते हैं, काजल किरण जी कुछ आइडिया है। जैसे बैंक ने बता दिया कि जी इस पैन नंबर के अगेंस्ट में इस आदमी ने लोन लिया है। अब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर लेगी, या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी उससे पूछेगी कुछ। Sir, it will send an email, वेरी गुड। in if it is if is accept, yes, I have taken the loan, हम्म and it will turn as yellow if he is not responding, and red if no, red if he is not responding, it will be yellow if he is not responding, then it will be said that it is acceptable, that he has taken the loan. देखिए इसमें ऐसा है कि first of all, information utility does not feed the information in its system unless it is corroborated by the other party। ठीक है। बैंक ने बताया दिस पर्टिकुलर पैन नंबर हैज टेकन अ लोन, सो नाउ एन ईमेल विल बी शॉट टू दैट अदर पार्टी। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ identification marks here। One, if the loan has been given by the banker, then only two types of color coding is done, either it is red or it is green। Yes, sir. But if it is somebody other than the banks, then three types of color coding is done: red, green, and yellow. The loan. Now, suppose banker has given the information that Mr. X has taken a loan. So an email will be given to Mr. X. Now, Mr. X has got three options. Number one, he may say that, okay, yes, I have taken the loan. So then it will be color coded as green. Second option is he may say, I have not taken any loan and it is a wrong information. So it will be marked as red. Third is that he may choose to remain silent। मरने दो, हमें क्या, हम बोलते ही नहीं कुछ भी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या करेगा, तीन रिमाइंडर भेजेगा, और तीन रिमाइंडर के बाद भी अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो इट विल बी डीम्ड दैट यू हैव टेकन द लोन। तो फिर आपको ग्रीन मार्किंग हो, ग्रीन कलर कोडिंग हो जाएगी इन केस ऑफ बैंक। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मांगता है कि बैंकर इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो झूठ नहीं बोल रहा है। ठीक है। बैंकर ने भी तो इंफॉर्मेशन पूरी दी है ना, उसमें फीड किया है सब कुछ चीजें। उसके अलावा अच्छा, जब आप इंफॉर्मेशन देते हो तो क्या एफिडेविट भी देते हो क्या। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जब कोई इंफॉर्मेशन देती है तो क्या एफिडेविट भी देती है साथ में कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूं सही है। बुक्स खोल सकते हो, देख सकते हो। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जब कोई इंफॉर्मेशन देती है तो क्या एफिडेविट भी देती है साथ में, फॉर्म के साथ में एफिडेविट अटैच होता है, यस और नो। हाँ जी, बिल्कुल होता है। होना तो चाहिए। होता होना है, तो चाहिए। बिल्कुल होता है। ठीक है। चलो, ये हो गया। और अगर अदर देन बैंक्स है तो फिर क्या होगा, अब वो कहेगा हाँ मैंने लोन लिया है या मैंने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की हैं, तो ग्रीन हो जाएगा। अगर वो बोलेगा मैंने नहीं लिया तो रेड हो जाएगा, और अगर वो कुछ नहीं कहता तो येलो हो जाएगा।
ठीक है, 3 टाइप की मार्किंग होगी। अच्छा, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी वाला काम भी हो गया, उसने एप्लीकेशन लगा दी। अब एप्लीकेशन जब लगाई तो उस डेट को हम क्या कहते हैं? Initiation date. इनिशिएशन डेट, वेरी इनिशिएशन गुड। डेट। हाँ। अच्छा, इनिशिएशन डेट के बाद भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या जब तक कमेंसमेंट नहीं हो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? इनिशिएशन डेट के बाद में भी कुछ ड्यूटीज होती हैं क्या ईआरपी की, या वो चुपचाप बैठेगा जब तक कमेंसमेंट नहीं होगी? Yes, sir. He has इन्फॉर्म टू he डबल has ए। for the he has to search for the three IPs giving in for newspaper for giving, हम्म। हाँ so that one can be chosen from it if there is हाँ class of then. हाँ, in case there is a class of creditors, so there is a concept of authorized representative, and now the concept of facilitators also has come. कि 3 choices will be given of the insolvency professionals which belong to the state in which the creditors resides, maximum number of creditors resides। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ काम होता है क्या इनिशिएशन डेट के बाद, या चुपचाप बैठेगा अपना जब तक क्या पता एप्लीकेशन एडमिट हो ना हो, मैं क्यों मेहनत करता रहूं? वो और क्या करेगा इसके अलावा? The एक तो, books also, हाँ वेरी if गुड, he if बुक्स भी उसको देखनी है, ठीक है ना। अब हो गया, एप्लीकेशन लगा दिया आपने। आपने एप्लीकेशन लगा दी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा भाई एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, कुछ और करा के लाओ, तो क्या वो इनिशिएशन डेट मानी जाएगी या नहीं? आप एप्लीकेशन लगाने गए एनसीएलटी में, रजिस्ट्री ने आपको इन्फॉर्मेशन वापस कर दी आपकी एप्लीकेशन कि भाई ये कंप्लीट नहीं है, इस पे एफिडेविट नहीं है, नोटराइजेशन नहीं है, फीस नहीं पेमेंट की, या चालान नहीं लगा, आपको वापस कर दी, तो क्या वो इनिशिएशन डेट मानी जाएगी, यस और नो? no sir. नो। नो। तो एप्लीकेशन का मतलब है एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, आपने एप्लीकेशन लगा दी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कितना टाइम है उस एप्लीकेशन 14, को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए? 14 days sir. अच्छा, 14 डेज में नहीं करते तो? अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 डेज में नहीं करती, एप्लीकेशन ना एक्सेप्ट करती ना रिजेक्ट करती, तो क्या होगा? Applicant can go to higher authority. अच्छा, मतलब 15वें दिन ही आप चले जाओगे हायर अथॉरिटीज के पास? कुछ मे बी कुछ टाइम मिलेगा। नहीं, कितना, क्या है, कोई सेक्शन है क्या इसके लिए, कुछ आइडिया है? Sir, it is not mandatory to accept the application within 14 days. हाँ। It it इट इज ऑल दीज टाइमलाइंस, ये जितनी भी टाइमलाइंस हैं, ये सारी की सारी टाइमलाइंस डायरेक्टरी हैं, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो एप्लीकेंट है इसके लिए भी कोई टाइम है क्या कि एप्लीकेशन कब लगाएगा? डिफॉल्ट आज हो गया, आज ही लगा देनी है, कब तक लगानी है इसको? भाई डिफॉल्ट आज हो गया, क्या आज ही एप्लीकेशन लगानी है, कब तक लगानी है, या इसके लिए भी 14 डेज में ही एप्लीकेशन लगानी है, कब लगानी है? हाँ जी, limitation period है 3 years का sir. वेरी गुड। हाँ, लिमिटेशन पीरियड है 3 इयर्स का। लिमिटेशन पीरियड में कभी भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि आज ही डिफॉल्ट हो तो आज ही भाग के लगानी है आपको एप्लीकेशन। और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए नोटिस देते हैं वो नॉर्मली, लेकिन नोटिस देना जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, 2 तरह के लोन है, बैंक ने लोन दिए हुए हैं, कई बार सिक्योर्ड लोन दिए हैं, कुछ अनसिक्योर्ड लोन दिए हैं। तो क्या सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन में प्रोसेस डिफरेंट है या सेम है? सेम। Sir, Same. इसमें तो सेम है सर. हम्म, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड पार्ट इन उसमें डिफरेंट है सर. सिक्योर्ड इनसिक्योर्ड का बात उसमें आता है. अब आप मान लीजिए सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, इनके राइट्स कुछ डिफरेंट होते हैं क्या सीआईआरपी में, या सेम राइट्स ही होते हैं? जैसे सीआईआरपी प्रोसेस शुरू हो गया, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, क्या उनका उनको कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, या नहीं दिया जाता सीआईआरपी प्रोसेस में?
नो सर, सीआरपी में ऑल आर इक्वल। हाँ, सीआईआरपी में चाहे सीओसी हो चाहे रेजोल्यूशन प्लान हो, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, सीआईआरपी प्रोसेस में क्या वो अपनी सिक्योरिटी को रियलाइज कर सकता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर, या नहीं? सो नो, ठीक है। सरफेसी में हाँ, अब मान लीजिए कि उसने पहले नोटिस दे रखा है, ठीक है। एज वी नो इन सरफेसी यू कैन गिव ए नोटिस इन सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। नाउ सपोज नोटिस हैज बीन सर्व्ड, बट इन द मीन टाइम एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी हैज बीन एडमिटेड, तो उस केस में क्या होगा? व्हाट विल बी द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन? SARFAESI will be suspended. सरफेसी विल बी सस्पेंडेड। अच्छा, सपोज सीआईआरपी प्रोसेस इज कंप्लीट एंड दिस मॉरिटोरियम इज लिफ्टेड, तो देन ही हैज टू गिव फ्रेश नोटिस, या पुराना वाला नोटिस ही काम करेगा? जैसे, ऑल हाँ विल कंटिन्यू। हाँ, अब सुमन किशोर जी आप बताइए। देखिए ऐसा है कि 13(2) का आपने नोटिस दिया, ठीक है। जी सर, आपको सब आपको 60 डेज का नोटिस देना होता है। ये सर आपके दिवा नोटिस के नोटिस। 20 डेज हो गए, ठीक है। ये सर। अब इन द मीन टाइम सीआईआरपी शुरू हो गई, अब ये प्रोसेस सस्पेंड हो गया। अब आप ओके। सीआईआरपी खत्म हो गई, तो सीआईआरपी ओके। खत्म होने के बाद में वो जो वही नोटिस काम करेगा, या नया नोटिस देना है आपको? फ्रेश, वी हैव टू इशू फ्रेश। राइट, ओके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सीआईआरपी। सीआईआरपी में जैसे क्या होता है, सूट होते हैं, ठीक है, लेडीज के, डिफरेंट उसमें वैरायटी होती है। तो सीआईआरपी में भी 3 वैरायटीज हैं। कौन कौन सी वैरायटीज हैं सीआईआरपी की? सीआईआरपी में 3 टाइप की वैरायटीज हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो नॉर्मल प्री सीआईआरपी। प्री पैकेज और एमएसएमई के लिए। हाँ, एक है हमारी उसी प्री पैक, तो उसी के लिए, और एक है फास्ट ट्रैक, ठीक है। फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक जो है ये कुछ टाइप की कंपनीज के लिए, और एक है फिर प्री पैक, ठीक है। ये फास्ट ट्रैक कौन सी कंपनीज पर लगती है? फास्ट ट्रैक जो मोर है, कम और फास्ट ट्रैक में भी डिफॉल्ट सेम रहता है या डिफॉल्ट डिफरेंट है? फास्ट ट्रैक में भी फास्ट ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट अमाउंट सेम है। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म सेम है सीआईआरपी और फास्ट ट्रैक के, या डिफरेंट है? सेम सेम सर। सेम है, वेरी गुड, ठीक है। और प्री पैक में डिफॉल्ट कितना है? 10 मिनिमम lakhs 10 lakhs। मिनिमम 10 लाख, वेरी गुड, ठीक है। और प्री पैक प्रोसेस कैसे डिफरेंट है सीआईआरपी या फास्ट ट्रैक से? दो कंट्रोल। चार मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? CD remains in control in pre-pack. वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्री पैक में एप्लीकेशन कैन बी मूव्ड ओनली बाय द सीडी, नॉट बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है। क्योंकि प्री पैक जो है इट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर कॉर्पोरेट एमएसएमईज, तो उसमें वो कहता है कि सिर्फ सीडी ही एप्लीकेशन लगा सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं लगा। डिफॉल्ट अमाउंट भी डिफरेंट है, कस्टडी एंड कंट्रोल सीडी के पास ही रहता है, जबकि सीआईआरपी या फास्ट ट्रैक में कस्टडी एंड कंट्रोल शिफ्ट टू द आईआरपी और आरपी एंड लेटर ऑन टू सीओसी। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डेज पीपीआईआरपी में ऑलमोस्ट हाँ, हाफ है ये। वेरी गुड, नंबर ऑफ डेज आपके 120 है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अच्छा, सीआईआरपी के अलावा और ये 3 प्रोसेसेस तो ये हो गए, और कॉर्पोरेट्स के और 2 कौन से प्रोसेसेस हैं? लिक्विडेशन Liquidation. सर। हाँ, एक Liquidation. तो है लिक्विडेशन, और दूसरा है, एक और वॉलंटरी है लिक्विडेशन। वॉलंटरी लिक्विडेशन, ठीक है। इन 5 प्रोसेसेस के अलावा भी कोई प्रोसेस है क्या कॉर्पोरेट्स के लिए, या यही 5 है? 5 years, sir. हैं जी? 5, sir. वैसे चैप्टर 7 है बट 5 है प्रोसेस। हाँ, नहीं, एक वो जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर वाला, वो हाँ सर, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का है ना? पर हाँ इसमें हाँ, तो एफएसपीज वाला भी वो अलग है, उसके लिए कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, लेकिन प्रोसेस तो वो भी है ना हमारे पास। तो ये बेसिकली क्या कहता है ये आईबीसी ये कहता है कि भैया ये जो चीजें हैं ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पर लागू नहीं होती। जैसे मान लीजिए
बैंक ने आपको लोन दिया, तो बैंक आपके अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। लेकिन आपने बैंक के लिए कोई काम किया, या आप मान लो बैंक के एम्प्लॉय हो, आपका 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ड्यू है, तो क्या आप बैंकर के अगेंस्ट में आईबीसी लगा सकते हो? नो बैंकर के सर। अगेंस्ट में आप सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगा सकते हो एजओसी, या नहीं? नो सर। नहीं। क्यों? Because it is a financial service, हाँ, financial institute, वो क्या and है कि इसको ना कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन से ही अलग रख दिया। इसको कह दिया कि कॉर्पोरेट पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, एलएलपी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट ए फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, इट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि अगर इस तरह से हो जाएगा फिर तो लोगों का कॉन्फिडेंस ही शेक हो जाएगा ना। भाई बैंक के अगेंस्ट में ही मान लो आप आईबीसी शुरू कर दो, तो वो ये कहता है क्योंकि बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय ए सेपरेट रेगुलेटर, आरबीआई उनका रेगुलेटर है, तो पहले गवर्नमेंट रेगुलेटर से पूछेगी, उसके बाद में अगर जरूरत होगी तो फिर उनकी भी आईबीसी शुरू हो सकती है। प्रोसेस मोर और लेस सिमिलर है, जैसा कि सीआईआरपी या लिक्विडेशन में होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कॉरपोरेट्स के बारे में। इसके अलावा हमारे पास नॉन कॉरपोरेट्स हैं। नॉन कॉरपोरेट्स के लिए क्या प्रोसेसेस हैं? फ्रेश स्टार्ट हैं? फ्रेश स्टार्ट, इंडिविजुअल fresh, इंश्योरेंसी एंड बैंक्रप्सी। हाँ, एक तो हो गया फ्रेश स्टार्ट, इंडिविजुअल इंश्योरेंसी एंड हाँ, और एक हो गया बैंक्रप्सी। इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, और एक हो गया बैंक्रप्सी। अच्छा, फ्रेश स्टार्ट क्या है? फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस क्या है, अगर 2 लाइन में बताएं तो? sir, it is mainly for landless farmers, बिल्कुल जिन मतलब who are very poor हम्म people. हम्म तो उसमें वो ये कहता है कि जी आपकी अगर इनकम बहुत कम है, ठीक है, आपकी इनकम 60 है, 60,000 पर एनम, या फिर 20,000 asset, आपके पास 20,000 के एग्रीगेट एसेट्स हैं, या फिर 35,000 के 35,000 आपके Debt. पास डेट्स हैं, तो इन केसेस में ये चीज लागू हो जाएगी। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के लिए क्या है? इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के लिए व्हाट इज द डिफॉल्ट अमाउंट? 1,000 rupees. 1,000 रुपीज। अच्छा, वेदर इन एवरी केस इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी हैज टू नेसेसरली फॉलो, हैज टू नेसेसरली प्रीसीड बैंक्रप्सी, कि पहले इंसॉल्वेंसी होगी ही होगी तभी बैंक्रप्सी होगी, या कोई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड फॉर बैंक्रप्सी? इसमें यह है कि इफ यू आर ट्राइंग टू प्ले फ्रॉड, तो इन दैट सिचुएशन even if you move an application for insolvency, that application can directly go to the bankruptcy, और adjudicating authority में allow कि भाई you directly go in for bankruptcy। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं which are there about the various processes। उसके अलावा besides a reading of these processes, तो हमें क्या है, इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ाई हमें कैसे करनी है ये बताइए। ये जो प्रोसेसेस हैं, हाउ वी शुड डू दी स्टडी, हमें स्टडी इसकी करनी कैसे है ये बताइए। आप मान लीजिए पढ़ना चाहते हो, तो आप कैसे पढ़ोगे? Sir, CIRP, then fast track, then हाँ, PPIRP, then liquidation, then voluntary नहीं, liquidation. ठीक है, आप मान लीजिए सीआईआरपी पढ़ना चाहते हो, तो सीआईआरपी में क्या क्या पढ़ोगे आप? एक्ट, सीआईआरपी उसके में, बाद सर रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, तो सबसे पहले तो आप सेक्शंस पढ़ोगे, सेक्शंस के बाद में आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ोगे। रूल्स में क्या लिखा होता है, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज रूल्स? हैज में बी स्पेसिफाइड, ऐसा वर्ड रीडिंग जो है तो रूल्स हैज में नहीं बी स्पेसिफाइड। नहीं, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड है तो रूल्स है, एज में भी स्पेसिफाइड है तो रेगुलेशन है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस? रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं? Rules are made by the central government, regulations are made by the IBBI. वेरी गुड। तो रूल्स बेसिकली दे स्पेसिफाई the forms normally, so they will specify the forms, so they will prescribe the forms which are to be used,
and regulations, they outline the procedure. Basically this is the difference. Although there are forms in both rules and regulations, rules में भी forms होते हैं और regulations में भी form होते हैं, but जो regulations हैं they are made by IBBI and rules are made by the central government. ठीक है. अच्छा, CIRP प्रोसेस, अब आप ये देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, हम्म है ना? तो देखिए हमने क्या किया हुआ है इसमें, तो दिस मटेरियल इज अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट ऑल्सो, और ये जो है ये एडिटेबल है, सो दिस आई विल शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो. ठीक है, तो ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा. इसमें क्या है, ये कॉर्पोरेट पर्सन, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन, CIRP प्रोसेस. CIRP प्रोसेस में हमें 3 चीजें पढ़नी है, सेक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस. ठीक है, उसके बाद में लिक्विडेशन प्रोसेस आ जाएगा. लिक्विडेशन प्रोसेस में भी रूल्स है क्या? लिक्विडेशन प्रोसेस में रूल्स हैं या सिर्फ रेगुलेशन ही है? ओनली रेगुलेशन सर. रेगुलेशंस ही है. ठीक है, तो कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस दोनों हैं, कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ रेगुलेशंस. ठीक है, अकॉर्डिंगली हमने प्रोसेस वाइज ही बना रखा है. तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं. बट अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी वी विल स्टार्ट इन द रिवर्स वे. वी विल स्टार्ट विद अलाइड लॉज फर्स्ट. अलाइड लॉज के, और तब तक आप क्या करोगे, आप इसको अपने आप पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा. आप मुझसे फोन पे टच में रह सकते हैं, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस, है ना? और मैंने पूरा प्लेलिस्ट भी आपके साथ शेयर कर लिया. होता क्या है, रीजन में भी मैं बताता हूं. रीजन ये होता है कि IBC तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो अलाइड लॉज है, अलाइड लॉज पर फोकस बहुत कम रहता है. कई बार वी आर अंडर दिस इंप्रेशन कि भाई हम लोग जनरल नॉलेज से आंसर कर देंगे, बट जनरल नॉलेज से आंसर नहीं हो पाता है जब तक हम लोग उसकी पूरी तैयारी नहीं करेंगे. और 23 मार्क्स भी कम नहीं है 100 में से, 23 मार्क्स भी बहुत है. ठीक है, तो आप थोड़ा सा जनरल लॉज को आज देखते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये जो भी मटेरियल है आप ग्रुप में एक बार लिख देंगे, ये मैं सारा शेयर कर दूंगा जो भी हमने डिस्कस आज किया है. एक मिनट. सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. ठीक है, ये स्क्रीन विजिबल है? यस सर. हाँ, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, रेमेडीज, राइट्स ऑफ वर्कमैन, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मार्केट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यूएशन, फॉरेंसिक ऑडिट. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कुछ बातें बताइए आपको जो भी मालूम है. प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कि सबसे पहला तो क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, रिटन है, ओरल है, क्या है? रिटर्न है सर. रिटन है. ओके, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इट, किस टाइप का है? सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल में क्या होता है, there are powers of center and there are powers of state. So powers are divided between the state and the center. ठीक है, अब normally it is said that there are 3 pillars of democracy. 3 pillars of democracy क्या है, कुछ आइडिया है? Judiciary, Very good. executive, Very good. and legislative. Right. So legislature, judiciary and executive. ठीक है. अच्छा, between judiciary and legislature who is supreme? Legislature sir.
Legislature. Legislature. Why? Because Parliament. they can Because they have- override the judgments passed by the judiciary. Suppose even if Supreme Court passes any judgment, so legislature sometimes what they do, they amend the law itself. कई बार ऐसा देखा ना हमने कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, जनरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है इट इज द लॉ ऑफ द लैंड, लेकिन कई बार उसको भी ओवरटर्न कर देती है हमारी लेजिस्लेचर, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? to execute the laws passed by legislature. वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। So under Article 14 of the Constitution, the Supreme Court in Swiss ribbons upheld the classification of financial creditors and operational creditors under IBC. So Swiss ribbons is an important judgment of Supreme Court about which we will read in detail later. But sometimes what happens is when the law comes, the law itself is challenged. ठीक है, IBC को भी चैलेंज किया गया कि भाई IBC is ultra vires the Constitution, है ना। अभी हमने बेसिक बात क्या पढ़ी? हमने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि देयर हैज टू बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड, कास्ट, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो ये कहता है कि when there are creditors, so all the creditors should be treated alike, because in IBC financial creditors are on a different footing. Even when they apply, application के टाइम पर भी they need not give notice of demand, है ना। Operational creditors need to give notice of demand. उसके अलावा financial creditors normally find a place in the COC. Operational creditors are normally kept outside the COC. So this was challenged under the Constitution. Any provision of law can be challenged under the Constitution. ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही है कि जो भी लॉ बने हैं, जो भी रूल बने हैं, जो भी रेगुलेशंस बने हैं, उसको इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो इस केस में कहा गया कि भाई ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, दे आर केप्ट ऑन अ डिफरेंट फुटिंग इन IBC. So it is against the Article 14. Article 14 says that it should not be arbitrary. There should not be any discrimination. So, but there is a exception in Constitution. Constitution क्या कहता है कि if any classification is based on intelligible differentia, like suppose there is a reservation on caste basis, right? अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द वन हैंड इट सेज दैट देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, बट स्टिल इट गिव्स सर्टेन प्रिविलेजेस टू अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, राइट। मे बी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, मे बी बेस्ड ऑन कास्ट ऑल्सो, है ना, बिकॉज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दे आर गिवन सर्टेन प्रेफरेंसेस, है ना, इन अपॉइंटमेंट्स, इन प्रमोशंस एटसेट्रा। Why? Because it is based on intelligible differentia. So that is the concept of intelligible differentia. So if something can be differentiated and there is a logic behind it, then it is allowed. This is what our Constitution says. So our Constitution held in this Swiss ribbons case, because OCs and FCs, FCs and OCs, they constitute an intelligible differentia with rational nexus to IBC's objective. Because why financial creditors are given prominence in IBC? Any idea? Why financial creditors are treated on a different footing from operational creditors? Because they are the one who have funded the organization. Financial creditors, whenever a company gets a loan, it is normally on a permanent basis. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी प्रमोटर जो है पूरा अपनी फंडिंग से इंडस्ट्री को नहीं चलाता है, ठीक है, चाहे अदानी अंबानी ही क्यों ना हो, उनके भी लोन चलते रहते हैं, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उन्होंने क्या किया है? दे हैव इन्वेस्टेड देयर फंड्स इनटू द कंपनी, दे हैव गिवन लोन टू द कंपनी, दे हैव गिवन डेट टू द कंपनी, financial debt. So if the management is not able to run the company,
let the creditors take over. This is the concept, and that is why financial creditors are given prominence in IBC. हमारा जो बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी रिपोर्ट था, BNRC, which was chaired by T.K. Vishwanathan ji, who was the chairman. So हमारा ये जो IBC है, it is based on UK law. There are two laws basically regarding insolvency, and rest of the countries they follow either of them. एक तो है UK law और एक है US law. US law क्या कहता है? US law कहता है कि let the debtor stay in control despite default. अब बिफोर IBC हमारे जितने भी लॉज थे वो US लॉ पर बेस्ड थे. US लॉ क्या कहता है कि चाहे डिफॉल्ट हो जाए फिर भी डेटर ही कंट्रोल में रहेगा. तो पहले होता था ना, वाइंडिंग अप पिटीशन चल रही है, डिफॉल्ट चल रहे हैं, कोर्ट केस लड़ रहे हैं, प्रमोटर्स एंजॉय कर रहे हैं कंपनी को, ठीक है. बट IBC में क्या किया? इट इज बेस्ड ऑन UK लॉ. UK law says that if the management is not able to handle the company, then management is not sacrosanct. So let the management be taken over by the creditors, by the financial creditors normally, who have invested in the company, who have funded the company. ठीक है? And that is the reason why home buyers also are clubbed as financial creditors. क्योंकि कोई भी रियल एस्टेट कंपनी में क्या होता है? रियल एस्टेट कंपनी में बिल्डर क्या करता है? बिल्डर अपना पैसा तो कम लगाता है. नॉर्मली तो वो बैंक से लोन ले लेता है या फिर होम बायर से ले लेता है पैसे, कि भैया तुम पैसे दो, हम सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस पे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे. इसीलिए जो होम बायर्स है इनको भी क्या माना? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. ठीक है. तो इसमें यह है कि ये जो डिफरेंशिएशन है बिटवीन एफसीज एंड ओसीज, इट इज बेस्ड ऑन एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया with rational nexus to IBC's objective. ठीक है. अच्छा, अब ये बताइए कि what type of writs, suppose as we all know that our constitution guarantees us certain fundamental rights. Now in case there is a violation of these fundamental rights, what right a citizen has got? किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया. ठीक है. पहले तो ये बताइए फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं? कुछ आइडिया है क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? और क्या सिटीजन्स को मिलते हैं या किसी को भी मिलते हैं? फॉरेन सिटीजन्स को भी मिलते हैं क्या? I think right to equality, freedom of speech हो. So there are Right. various rights which are available. Some of them are available to citizens only. Some of them are available to non-citizens also. ठीक है. Suppose a foreign citizen comes to India, he has also got certain rights. कि उसके अगेंस्ट में भी कोई क्राइम हो जाता है तो हमारा लॉ प्रोटेक्ट करता है ना. तो ये है बेसिकली. एंड सपोज देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देन द person who is affected, he can file a writ petition directly before the Supreme Court or High Court. उसको जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, देयर इज ए हायरार्की ऑफ कोर्ट्स. हायरार्की ऑफ कोर्ट्स क्या है? कोर्ट ऑफ सेशंस है, देन हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है. बट अभी वो जरूरी नहीं है कि अगर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हुआ तो वो कोर्ट ऑफ सेशंस के पास जाएगा. वो सीधा सीधा अपना सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है या हाई कोर्ट में भी जा सकता है. फॉर अप्रोचिंग सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल है? 32. और हाई कोर्ट के लिए 26. 226. वेरी गुड. ठीक है. अब जब भी आपका वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो तो आप क्या करते हो? एक रिट पिटीशन फाइल करते हो. ठीक है. और कितने टाइप की रिट पिटीशन होती हैं? 5. 5 टाइप. Habeas type. quo warranto, हाँ. prohibition, मैंडेमस. mandamus, और habeas quo corpus. certiorari, हम्म habeas corpus. हो गया सर 5. ये हैबियस कॉर्पस क्या होता है? टू प्रोड्यूस समवन. हाँ. To produce the body before the court. मतलब समझाइए, इसका मतलब क्या है?
इफ किसी को किसी ने बंद कर रखा है या फिर कैदी बना रखा है, तो उसके लिए रिट पिटिशन, उसको कोर्ट के बिफोर प्रोड्यूस करने के लिए रिट पिटिशन डाली जाती है। हम्म 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 ये भी मैं एक आपके साथ शेयर करता हूं। ये पीपीटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये नरेंद्र जी, आप नोट करते रहिएगा, जो जो भी पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ आप ग्रुप में लिख देंगे, मैं सारी शेयर कर दूंगा दोबारा से, ठीक है जी। हाँ सर। हाँ जी। तो ये रिट्स के बारे में है ना। तो कितने टाइप्स की रिट्स होती हैं? 5। हम्म ठीक है। ये है रिट्स। हैबियस कॉर्पस के बारे में बताइए, क्या होता है हैबियस कॉर्पस? कमलदीप कालरा जी, आप बताइए, आप तो एलएलबी किए हुए हैं। सर ये पुलिस वाला अगर वो उठा के ले जाता है किसी बंदे को, वेरी तो गुड। तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि ये उसकी हाँ प्रोड्यूस कराए। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि नॉर्मली प्रोविजन क्या है कि जैसे ही आपने बंदे को उठाया 24 आवर्स में आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है ना। लेकिन नॉर्मली वो करते नहीं है। क्यों नहीं करते? उसका कारण ये कि पहले वो कोशिश करते हैं कि भाई उससे एडमिट करा लो क्राइम, और पता भी करा लो कि कहाँ कहाँ वो उसको लेके जाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो वो क्या करते हैं, इस चीज को रजिस्टर नहीं करते। उठा तो लेते हैं बंदे को, लेकिन ये उसकी एंट्री नहीं करते कि भाई हमने ये बंदे को उठाया है। ठीक है। अब घर वाले क्या करते हैं, घर वाले पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस स्टेशन वाले बोलेंगे भाई यहाँ तो आया नहीं। घर वाले डर जाते हैं, वो सोचते हैं कहीं मार ही ना दिया हो, क्योंकि क्रिमिनल्स होते हैं सब। तो घर वालों को डर लगता है कहीं एनकाउंटर ही ना कर दिया हो, तभी नहीं बता रहे। तो वो क्या करते हैं, कोर्ट में पिटीशन लगाते हैं। क्योंकि और ये पिटीशन किस, हमारे कौन से राइट पर बेस्ड है, कौन से फंडामेंटल राइट पर बेस्ड है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ। हाँ, ठीक है। तो भाई लाइफ का तो हर एक को अधिकार है ना, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, उसको भी राइट का अधिकार है, उसको भी राइट टू लाइफ है ना। भाई आप उसको पनिशमेंट दे दो, लेकिन आप उसकी जान तो नहीं ले सकते ना। तो हैबियस कॉर्पस क्या है? यू मे हैव द बॉडी, मतलब ये कि वहां पर पिटिशन लगाता है जो भी बंदा है, उसके घर वाले पिटिशन लगाते हैं उसके बिहाफ पर कि भैया ये बंदा मिल नहीं रहा, और पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि इसको जिंदा या मुर्दा पेश करे। या तो जिंदा होगा या मुर्दा होगा, दो ही बातें होंगी, है ना। तो इसीलिए कहते हैं जिंदा हो या मुर्दा है तो भाई बॉडी तो मिलेगी उसकी। तो इसीलिए ये लगाई जाती है हैबियस कॉर्पस। ठीक है। तो ये हैबियस कॉर्पस, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में सर्टी ऑरेरी क्या है? व्हाट इज सर्टी ऑरेरी? सर्टी का मतलब हाँ देखो, सर्टेन। ठीक है। और ऑरेरी मतलब बीइंग हर्ड। ऑरेरी मतलब समथिंग टू डू विद हियरिंग। ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि यू आर सर्टेन ऑफ बीइंग हर्ड। So the writ of certiorari is issued to a lower court directing that the transfer of a case for review, usually to overrule the judgment of the lower court। क्या होता है कि जो भी जजमेंट्स है नॉर्मली न्यूज़पेपर्स में आती हैं, तो अगर इनको लगता है, हायर कोर्ट को लगता है कि भैया जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया वो ठीक नहीं दिया, तो वो क्या कहते हैं, अपने पास केस को मंगा लेते हैं, और इसके लिए रिट लगाई जाती है, रिट ऑफ सर्टियोरेरी। ठीक है। ये है बेसिकली सर्टियोरेरी। कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब आप कॉर्पस बॉडी से समझ सकते हो, है ना। तो ध्यान आ जाएगा। सर्टियोरेरी में क्या है, सर्टेनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऐसा समझ लीजिए आप। थर्ड है हमारी रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट क्या होती है? और जो हम फाइल करते हैं वो रिट होती है या रिट पिटिशन होती है? सपोज देयर इज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो वो आदमी क्या फाइल करेगा, रिट फाइल करेगा या रिट पिटिशन फाइल करेगा? पिटीशन। रिट पिटिशन। वेरी गुड, रिट पिटिशन। और उसके एवज में जो कोर्ट है वो रिट इशू करता है। रिट इज बेसिकली एन ऑर्डर। ठीक है। तो प्रोहिबिशन क्या होती है? प्रोहिबिशन समझाइए क्या है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी सर। हाँ। तो प्रोहिबिशन क्या होती है, अपनी भाषा में अ, समझाओ क्या होती है ये? किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को कोई सर्टेन काम करने से रोकने के लिए, हाँ, कुछ एग्जांपल दीजिए। आई थिंक जैसे जैसे। बुलडोजर वाला चल रहा आजकल, योगी जी वाला जी बुलडोजर चल रहा। जी। ठीक है। तो prohibition is a writ issued by a higher court to a lower court to enforce inactivity in the jurisdiction.
It happens only in case the higher court is of the discretion that the case falls outside the jurisdiction of the lower court. Writ of prohibition can only be issued against judicial and quasi judicial authorities. देखो ये प्रोहिबिशन डिफरेंट है. प्रोहिबिशन और जो आपका को वारंटो है, ये प्रोहिबिशन आप कैसे इश्यू करते हो? प्रोहिबिशन इश्यू करते हो आप कोर्ट के थ्रू. ठीक है. हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कहता है कि भाई आप ये एक्टिविटी नहीं करोगे. ठीक है, क्योंकि आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है. जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आईबीसी वाले बहुत सारे पिटिशंस हाई कोर्ट में चले गई, तो हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट को कि इट इज नॉट इन योर जुरिस्डिक्शन. ठीक है, लेट अस हैंडल दिस सिचुएशन. ऐसे शुरू में बहुत सारी जजमेंट्स आई. ठीक है. और मैंडामस क्या होती है? व्हाट इज मैंडामस? ये प्रोहिबिशन का उल्टा होता है सर. हम्म. यहाँ पे कुछ काम करने के लिए किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को बोला जाता है, हाँ. वो नहीं कर रहा है. हम्म. तो writ of mandamus can be used to order the completion of a task or in other cases it may require an activity to be ceased. दोनों बातें हैं. मतलब ये कि मान लीजिए गड्ढे हो रहे हैं सड़क पर. ठीक है. अब गड्ढों से कोई आदमी गिर गया, तो कोर्ट क्या इशू करेगा? कोर्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोलेगा भाई ये गड्ढे भरो. ठीक है. या कोई अगर डिमोलिशन कर रहे हैं, बुलडोजर एक्टिविटी चल रही है, तो बोलेगा भाई ये बुलडोजर एक्टिविटी बंद करो. तो मैंडेट हो गया. मैंडेट से समझ लीजिए आप, मैंडामस समझिए मैंडेट से, है ना. माइंड में रखिए मैंडेट. अगर मैंडेट माइंड में रहेगा तो ध्यान में रहेगा. चलिए, और अगली प्रोहिबिशन, ये को वारंटो. व्हाट इज दिस को वारंटो? को वारंटो क्या होती है? को मतलब क्यों, ऐसा समझ लीजिए, क्वेश्चन मार्क है एकदम से. और वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी. ठीक है. तो समटाइम्स यू यूजर पे पब्लिक ऑफिस, तो वो ये कहता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर क्लेमिंग दिस ऑफिस. तो कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस. दिस रिट प्रिवेंट्स द इलीगल assumption ऑफ ए पब्लिक ऑफिस बाय एन इंडिविजुअल. ठीक है. तो जो भी पब्लिक ऑफिस है वो इट हैज टू बी बाय सिलेक्शन, बाय इलेक्शन. ठीक है. अगर आपने जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो वो को वारंटो इशू करते हो आप उसके अगेंस्ट में. ठीक है. ये है बेसिकली. तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिट्स. ये फिर फंडामेंटल राइट्स है. ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा कि आर्टिकल्स के बारे में. अब चलिए हम दोबारा अपनी उसी पीपीटी पर चलते हैं. तो मोटा मोटा हमने रिट्स के बारे में देख लिया. रिट्स पर जनरली ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है. यहां पर थे हम. ठीक है जी. हम्म. हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था इसका, और क्वेश्चन नंबर से 2 भी कर लिया था. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 था रिट ऑफ प्रोहिबिशन. क्वेश्चन नंबर 2 करना है रिट ऑफ प्रोहिबिशन. अब हमने रिट ऑफ प्रोहिबिशन पढ़ लिया और रिट ऑफ सर्टियोरेरी भी पढ़ लिया. तो क्या डिफरेंस है दोनों में? सर्टियोरेरी और प्रोहिबिशन में क्या डिफरेंस है? Sir, prohibition is before final order and it is after final order. तो ये दोनों में डिफरेंस है. तो प्रोहिबिशन इज बिफोर द फाइनल ऑर्डर. तो प्रोहिबिशन प्रिवेंट्स द लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग फर्दर बिफोर पासिंग द फाइनल ऑर्डर. और सर्टियोरेरी में क्या होता है कि ऑर्डर पहले पास हो चुका होता है, तो इट क्वेश्चंस ऑन ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड. ठीक है. चलिए. Now Kavita, an IP, was appointed as RP for Steel Company. The promoter of Steel Company challenges Kavita's appointment before the High Court under Article 226. इन्होंने आर्टिकल 226 में एक रिट पिटिशन लगा दी, क्लेमिंग हर अपॉइंटमेंट वायलेट्स आर्टिकल 14, कि भाई ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है. तो हाई कोर्ट क्या करेगा? इसको एंटरटेन करेगा, डिसमिस करेगा, क्या करेगा? नहीं करेगा सर, ये एनसीएलटी में जाएगा, एनसीएलटी में जाएगा.
बिकॉज एपिलेट अथॉरिटी उसमें एनसीएलएटी है। क्योंकि इसमें ये देखिए कि अपॉइंटमेंट हो चुकी है, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अपॉइंट किया, अब उसको चैलेंज करना है, तो आप नेचुरली अपील में जाओगे। ठीक है, इसलिए यहां एपीलेट अथॉरिटी में जाना है। तो हाई कोर्ट इसमें एंटरटेन नहीं करेगा ये, तो हाई कोर्ट शुड डिक्लाइन। एंड सेक्शन 161 में आईबीसी, आप यू विल अपील टू द एनसीएलटी। अच्छा, मान लीजिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, क्या वो कभी सस्पेंड भी होते हैं क्या? जी सर, इमरजेंसी के टाइम। हाँ, और Yes. इमरजेंसी कितने कितने टाइप की होती है? इमरजेंसी अलग अलग तरह की होती है। नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, और फिर सिचुएशन ऑफ वॉर। अब मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, ठीक है, ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, आर्मी ने रिबेल कर दिया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज करेक्ट? तो इस केस में फंडामेंटल राइट्स क्या क्या सस्पेंड होंगे आपकी नेशनल इमरजेंसी में? ये एक्चुअली कुछ ग्राउंड्स हैं। क्या ग्राउंड्स हैं? ये हमारा आर्टिकल 350, अलग अलग आर्टिकल्स हैं, 352 है, 358 है, 359 है। तो 352 में कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, 358 में कौन कौन से हैं? ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19(6) फ्रीडम। तो वो ये कहता है कि आर्टिकल 358 ये अप्लाई होता है हमारा वार या एक्सटर्नल एग्रेशन में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? आर्टिकल 19 जो है ना, आर्टिकल 19 फ्रीडम जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है। एक मिनट, मैं जरा वो वाली पीपीटी दोबारा से शेयर करता हूं, उसमें शायद हमने इसको डिस्कस किया है। एक मिनट। हम्म अच्छा, इसमें नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं, तो इसमें तो नहीं है ना। हम्म तो इस पॉइंट को भी हम लोग कवर कर लेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की इमरजेंसी में कौन कौन से राइट्स वायलेट होते हैं। इसमें कुछ ऐसा पूछ सकता है हमारे से, ये दे रखिए, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, नजर आ रहा होगा आपको, है ना? तो वो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 352। अब ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 19, दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड इन द केस नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, which is stated under Article 358. 359 has the clause for suspension of other rights. In that case,
separate notification has to be issued by the president. लेकिन जो राइट्स मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 दे कैन नेवर बी सस्पेंडेड. ठीक है. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी दे कैनॉट अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स. तो कितने टाइप की इमरजेंसी हो गई हमारी? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सी इमरजेंसी में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं. ठीक है. ये यहाँ कवर किया हुआ पॉइंट. मैं जस्ट यही देख रहा था कवर किया हुआ है या नहीं. ये भी पीपीटी आपसे शेयर्ड है, दोबारा शेयर कर दो. चलिए, तो हमें ये देखना है कि कौन से टाइप की इमरजेंसी में कौन कौन से राइट्स आपके सस्पेंड होते हैं. अब हमने ये सुना होगा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, इसके बारे में. तो द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 एस्टेब्लिश द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन. ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द करंट लीगल पोजीशन. तो करेक्ट लीगल पोजीशन क्या है? ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है, इट वाज स्ट्रक डाउन एंटायरली इन 2015. अब कॉलेजियम सिस्टम इज ऑपरेटिव. आजकल जो है कॉलेजियम सिस्टम ऑपरेटिव है. ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, क्या होता है इसमें? Group of judges are appointing. Right. So basically the appointment is done by a panel of judges. एक कॉलेजियम होता है, इसमें प्रेसिडेंट भी होगा, लीडर ऑफ ओपोजिशन भी होगा. कमलदीप कालरा जी यानी लीड ऑन दिस. कुछ आइडिया इसमें क्या होता है, या और कोई? ये कॉलेजियम की क्या कॉन्सेप्ट है, होता क्या है इसमें? एनीवन? Sir, in collegium, senior judges are group of judges, bench of judges is there, and they're appointing the राइट. हाँ. CI. हाँ, वेरी गुड. नाउ ये आर्टिकल 142 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. सबसे पहली बात तो ये कि आर्टिकल 142 बोलता क्या है, क्या कहता है आर्टिकल 142 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? हमारा आर्टिकल 142 बोलता है कि व्हेनेवर समथिंग इज नॉट गिवन इन द लॉ, ऐसा हो सकता है ना कि भाई लॉ में कोई चीज नहीं हो, तो बेसिकली पर्पस क्या है? पर्पस ये है टू रेंडर जस्टिस. तो वो ये कहता है कि भाई आप जो है पावर है आपके पास टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी सिचुएशन. ठीक है. तो यू कैन पास एनी ऑर्डर नेसेसरी बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजंस. ऐसा हो सकता है कि लॉ में कुछ नहीं लिखा, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है which may not have been provided for in the law. But what is the idea of this judiciary? Judiciary का मतलब क्या है? Judiciary का मतलब यह है कि to render complete justice. ठीक है. तो कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर देते हैं, चाहे लॉ में लिखा हो या ना लिखा हो. यही आर्टिकल 142 है. ठीक है. तो आर्टिकल 142 of the Constitution was invoked by the Supreme Court in IBC related proceedings. बहुत सारे केसेस में आर्टिकल 142 आपका इन्वोक किया गया. और ये क्या कहता है? ये हमारा आर्टिकल कहता है कि पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस और पास एनी ऑर्डर नेसेसरी विच इज बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजंस. एक मिनट. ये हमारा 142 है. ठीक है. नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर, है ना? तो आर्टिकल 142 क्या बोलता है? तो अगर हम ये दोनों पीपीटी मिलाकर के पढ़ लेंगे ना तो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा कवर. तो आर्टिकल 142 वहां पर क्या है, वहां क्वेश्चन आंसर में दिया गया है, यहां पर उसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे रखा है. तो आर्टिकल 142 एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी डिक्री और जजमेंट नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर और कॉज. Any such decree passed by the Supreme Court shall be made enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament, and until provision in that behalf is so made
इन सच मैनर एज द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर प्रेस्क्राइब। ये आर्टिकल 142 है हमारा। चलिए, ये हो गया। तो आर्टिकल 142 हमारा क्या कहता है? अगर लॉ में कुछ नहीं लिखा है तो वो कुछ भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। इन ऑर्डर पर्पस क्या होना चाहिए? टू रेंडर कंप्लीट जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े, क्या कहता है? ड्यूरिंग सीआईआरपी ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चर। अच्छा, अब आ गया आपका राइट्स ऑफ वर्कमैन अंडर लेबर लॉज। तो बिफोर वी मूव टू दिस, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ध्यान में रखना है ये बताइए। क्या क्या चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मिनिमम पढ़नी है? क्या क्या पढ़ना है अपने को? फंडामेंटल रिट राइट्स। पिटीशन। एक तो रिट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एक तो रिट्स के बारे में जरूर पढ़ना है अपने को, है ना। दूसरा, हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लेना है। एंड व्हाट फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल एंड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। एक बार जस्ट लेट मी गो थ्रू दैट पीपीटी अगेन, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली है, ये वाली, ये रेमेडीज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम्म हम्म। एक हमें ये थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कई बार पूछ लेता है इस पर सवाल, दे समटाइम्स आस्क दिस क्वेश्चन, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? और वेदर एवरी कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? भाई जिन्होंने एलएलबी की उनको तो मालूम होना चाहिए क्या होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। राइट। जितना भी कोर्ट में बोला जाता है वो हर चीज रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन जैसे मान लो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं, है ना, ट्रैफिक कोर्ट्स हैं, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। या जैसे मान लीजिए बहुत सारे अदर कोर्ट्स होते हैं, तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या है कि जो भी रिसाइटल है वो सारा whose acts and proceedings were to be enrolled in a perpetual memorial and testimony, सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो being a court of record, the high court has a duty to keep its records correctly and in accordance with law। तो ये जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। लेकिन जो लोअर कोर्ट्स हैं, मैट्रिमोनियल कोर्ट्स हैं, ट्रैफिक कोर्ट्स हैं, दे आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। एक चीज और अपने को ध्यान में रखनी है बिफोर वी मूव टू दिस, वो क्या है कि कौन कौन से राइट्स जो है वो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं और कौन कौन से राइट्स हैं जो इवन फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है, फंडामेंटल राइट्स, ये बताइए जरा। तो राइट टू लाइफ फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। हाँ हाँ, वेरी गुड। और दिल्ली के पालम इलाके में बुधवार को भीषण आग लग गई। आग रामफल चौक के पास एक 5 मंजिला इमारत में लगी। इस घटना में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में एक मिनट, ये यूट्यूब कहाँ से खुल गया?
ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी। ये स्क्रीन है, ठीक है जी। तो वो ये कहता है कि कौन कौन से ऑल पर्सन्स को अवेलेबल है, विच इंक्लूड्स फॉरेनर्स एक्सेप्ट एनिमी अलायंस, ठीक है, एंड लीगल एंटिटीज लाइक कॉर्पोरेशंस। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है? एक तो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो इक्वेलिटी बिफोर, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, डबल जेओपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 25 to 8 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ये राइट्स जो हैं ये अवेलेबल हैं आपके सभी के लिए, ठीक है, चाहे कोई सिटीजन है चाहे कोई नॉन सिटीजन है। सिटीजन्स के लिए कौन से राइट अवेलेबल है? एक तो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयमेंट में कह दे भाई फॉरेनर्स कैन नॉट अप्लाई, ठीक है ना, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। वो ये नहीं कह सकते भाई हमारे से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो आप। तो आर्टिकल 14 इज नॉट अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें कह सकते हो कि भाई ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन अप्लाई, ठीक है। आर्टिकल 19 में क्या है? 6 फ्रीडम, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो ये अब जैसे प्रोफेशन है, प्रोफेशन में वो क्या कहते हैं? प्रोफेशन में कहते हैं ना भाई, जैसे बार काउंसिल है कि भाई आप फॉरेन जो लॉ फॉर्म्स हैं उनको अलाउ नहीं करोगे, फॉरेन एडवोकेट्स को अलाउ नहीं करोगे, है ना। अब वो ये तो नहीं कह सकते ना भाई हमारे आर्टिकल 19 का वायोलेशन हो रहा, नहीं। वो कहते हैं भाई तुम अपने कंट्री में जाके प्रैक्टिस करो, है ना, तुम यहाँ क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो। आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज। तो ये है इस तरह से, ठीक है। कुछ राइट्स अवेलेबल हैं जो सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ अवेलेबल हैं वो सभी के लिए, चाहे सिटीजन्स हो या नहीं हो। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। एक हम्म, चलिए ये भी हो गया, ये भी मैं शेयर करता हूँ। तो इतना अगर हमें हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। रेट्स के बारे में देख लेंगे, फंडामेंटल राइट्स किसको अवेलेबल है किसको नहीं अवेलेबल है ना। और 142 हमें पता होना चाहिए, 142 क्या है, इतना तो बेसिक आइडिया अपने को होना चाहिए। चीजें पूछने को तो वो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन इतना तो कम से कम अपने को आइडिया होना चाहिए, वरना तो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा। कॉन्स्टिट्यूशन पर एक बुक है बहुत अच्छी है, वो ये है सुभाष घोष की, मेरे पास बुक है, मैं पढ़ता हूँ नॉर्मली, अब मेरे को याद नहीं आ रहा नाम क्या, सुभाष कश्यप, राइट, डॉक्टर सुभाष कश्यप की बुक है। अगर आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंटरेस्टेड हो तो बहुत बड़ी बुक नहीं है वो, बहुत छोटी सी बुक है और एनसीईआरटी का पब्लिकेशन है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं राइट्स ऑफ वर्कमैन के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ वर्कमैन, कि वर्कमैन के लिए क्या क्या राइट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया, अब हम चलते हैं राइट्स ऑफ वर्कमैन अंडर लेबर लॉज। तो पहले तो ये बताइए कि आईबीसी में क्या वर्कमैन डिफाइंड है और वर्कमैन एम्प्लॉय एक ही बात है या कुछ अलग है?
सर अलग ये है सर। इंडस्ट्रियल एक्ट हाँ, में हाँ हाँ, वर्कमैन जो है कहाँ डिफाइंड है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। हाँ, आईबीसी में कहता है, आईबीसी रेफर्स अस टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। और वो ये कहता है कि वर्कमैन में ये जो एम्प्लॉयज हैं, वो पुलिस, एम्प्लॉयज ऑफ एयरफोर्स, नेवी, है ना, और आर्मी, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्कमैन। ठीक है, क्योंकि ये लोग स्ट्राइक वगैरह करना इनको अलाउड नहीं है, इसीलिए, क्योंकि वर्कमैन के लिए अलाउड है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में, इसीलिए इनको वर्कमैन की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ आइडिया लगेगा वर्कमैन के बारे में। ठीक है, आई थिंक वी आर गोइंग करेक्ट, हम सही जा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, यस सर। सर। है ना? जी सर, यस सर। हाँ, तो अब थोड़ा सा देखते हैं, तभी थोड़ा टाइम लगा देते हैं, और 10-15 मिनट, कोई बात नहीं है, तो लेट भी तो शुरू किया था। थोड़ा सा देख लेते हैं, वर्कमैन वाला देख लेते हैं, बस 10 मिनट लगाएंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं। During CIRP of ABC Manufacturing Company, 80 workmen employed for 3 years each are retrenched by the RP to cut costs. CIRP में इसने क्या किया, रिट्रेंच कर दिया वर्कर्स को। आरपी pays each workman 10 days average pay per completed year, that is rupees 30 days pay total. A workman challenges this. एक वर्कमैन ने इसको चैलेंज कर दिया। अच्छा, एक तो ये बताइए कि अभी आपको तो मालूम है कि नए लेबर कोड आ गए हैं, ठीक है, तो क्या लेबर कोड हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है? नो सर, कट ऑफ डेट विल बी, है ना सर, फरवरी 2025। हम्म। तो अब सीआईआरपी में, पहले तो ये बताइए कि सीआईआरपी में जो आरपी है, क्या वो रिट्रेंच कर सकता है वर्कर्स को, कर सकता है या नहीं कर सकता? भाई, ये कंपनी की सीआईआरपी शुरू हो गई, अब उसको लगता है ये फालतू वर्कर भर रखे हैं, 1,000 वर्कर हैं, हमें तो 500 की ही जरूरत है, तो क्या 500 को निकाल सकता है, ये सर नो? सर अपॉइंटमेंट कर सकता है, अगर जो नहीं लग रहे हैं उनको निकाल भी हाँ, सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अगर अपॉइंटमेंट का राइट है तो रिट्रेंचमेंट का भी राइट है। ठीक है, अब उसने उनको कुछ कंपेंसेशन दिया और वर्कमैन ने चैलेंज कर दिया, तो अब बात ये आती है कि भाई मिनिमम कंपेंसेशन कितनी होनी चाहिए। तो हमारा ये सेक्शन है, ये क्या कहता है, ये कहता है सेक्शन 25F है ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये कहता है इट रिक्वायर्स 15 डेज एवरेज पे पर ईयर। ठीक है, इसने इनको 10 दिन की एवरेज पे दी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, और आपका एक्ट बोलता है 15 डेज एवरेज पे पर ईयर। ठीक है, चलिए, तो इससे हमें क्या आइडिया हो गया कि भाई अगर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कितना होना चाहिए, 15 डेज एवरेज पे पर ईयर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये इन द लिक्विडेशन ऑफ XYZ कंपनी द लिक्विडेटर हैज रुपीज 100 crore अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझ में लेते हैं। देखो, क्वेश्चन तो हम तभी कर पाएंगे ना अगर हमें बेसिक बातें पता होंगी, तो बेसिक बातों पर चलते हैं हम जरा। ये नहीं, एक मिनट, ठीक है जी। हमें मालूम ही है कि भाई 29 जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज थे, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय 4 कोर्ट्स। ठीक है, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी थी लेकिन नोटिफाई नहीं हुए थे, अब तो ये नोटिफाई भी हो गए हैं। बेसिक बेसिक बात है, पीएफ कितने वर्कर्स पर लगता है? 20। 20। और ईएसआई? सेम सर, सेम। ईएसआई 10 पर लगता है। ओके सर। ठीक है, अच्छा, कैंटीन कितने वर्कर्स पर होना जरूरी है? जो वो सवाल पूछता है मैं वही पूछ लेता हूं, कैंटीन कितने वर्कर्स पर होना जरूरी है? 25। हम्म। नहीं, कैंटीन है 100 पर। एक मिनट, मैं बुक ले आता हूं।
मैं दो चार बातें आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछता है वो। ये वो बुक है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये नजर आ रही है ना, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बुक नजर आ रही है आपको, ये है बुक जो आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। जो इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट है उसको जरूर बुक पढ़नी चाहिए। नेशनल बुक ट्रस्ट की बुक है, और नेशनल एनबीटी, आपको जहां पर भी एनबीटी की बुक्स मिलती है वहां मिल जाएगी। प्राइस भी बहुत कम है, 185 रुपीज बुक का प्राइस है। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत शॉर्ट में समझा रखा है, सुभाष सी कश्यप के नाम से बुक है। ठीक है। अब लेबर लॉज के बारे में, लेबर लॉज के बारे में मोटी मोटी बातें। तो आपको वो तीन चार चीजें पूछता है। एक तो पूछता है जी कैंटीन कितने वर्कर्स पर जरूरी है, बताइए कैंटीन कितने वर्कर्स पर जरूरी है? मोर देन 250 सर। हैं? मोर देन 250 वर्कर्स। मोर देन 250? सर गूगल में बोला है सर, अभी आई डोंट नो अपडेटेड है कि नहीं है। हम्म फैसिलिटीज ये क्या है? ये फैसिलिटीज में आता है इन केस ऑफ लार्ज फैक्ट्रीज। ठीक है। अच्छा, एम्बुलेंस कब जरूरी है? कुछ में देखा होगा आपने, एम्बुलेंस भी जरूरी होती है। एम्बुलेंस रूम जरूरी है अगर 500 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। कैंटीन जरूरी है अगर 250 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। ठीक है। मैं इसका बुक का भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। क्रैश कितने में जरूरी? क्रैश कई बार पूछ लेता है। क्रैश होता है ना कि वुमेन एम्प्लॉयज भी हैं, तो क्रैश कितने पर जरूरी है? इफ 30 और मोर वुमेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, सेक्शन 48, सेक्शन भी दिया हुआ है। फुल टाइम वेलफेयर ऑफिसर कब जरूरी है? इफ फैक्ट्री एम्प्लॉयज 500 और मोर वर्कर्स। सेफ्टी ऑफिसर इफ 1000 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड। ठीक है। ये क्रैश का क्वेश्चन तो पूछा है उन्होंने कई बार। बाकी पीएफईएसआई का तो आपको आइडिया है ना? अब बाकी पूछने को तो देखो कहीं से भी पूछ सकता है वो आपसे। पर सर वही ऐसी है कि अलाइड लो में है ना सर, सिंपल पूछते हैं एज कम्पेयर टू आईबीसी सर। हाँ हाँ, वही तो। बट ऐसा ना, कुछ तो याद होना चाहिए ना। हाँ भाई मतलब पढ़ा कुछ पूछ होना ले, चाहिए सर। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर तो कुछ भी नहीं आप आंसर दे पाओगे ना। तो हाँ कुछ तो सर। आपको आइडिया होना चाहिए। यस सर। ठीक है। चलिए, एक बार जरा और एक बार मैं देख लेता हूँ, 5 मिनट और लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। ये ये था। ठीक है। तो ये मैं आपके लिए, ये दे दिया ना इसने, इसने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ये मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगा। चलो, ये सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब करेंगे क्या कि कल भी हम क्लास करेंगे। ठीक है।